what is हम्म, defined as a deliberate act to obtain unfair advantage? Manipulation, fraud, insider dealing, or whistleblowing. Okay. इंसाइडर डीलिंग। सही है। सी, insider dealing। अच्छा, अभी ये सारे अपने को बाद में पता चलेंगे। Which of the following is not a fundamental principle of ethics according to ACCA Code of Ethics and Conduct? Confidentiality, independence, objectivity, and इंडिपेंडेंस। professional behavior. Independence. Let's go. Which of the following is not one of the broad categories of risk according to the conceptual framework set out in the ACCA Code of Ethics and Conduct? Hmm. Advocacy threat, familiarity threat, intimidation threat, management threat. सी या डी में से एक है, बिकॉज फेमिलियरिटी एंड एडवोकेसी तो पता है। हाँ वही। इंटिमिडेशन थ्रेट एंड मैनेजमेंट थ्रेट। तो इंटिमिडेशन थ्रेट भी इंटिमिडेशन। होता है एक चीज। ओके। मैनेजमेंट थ्रेट इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हियर, मुझे ऐसा लगता है। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट से थ्रेट है कि भाई वो मैनिपुलेट कर देगा, वैसे टाइप का समथिंग इज मतलब। मैनेजमेंट थ्रेट करके कुछ होता ही नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एसीसीए कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट, ऐसा मुझे मे बी लगता मे है। बी। तो ऐसा मुझे लगता है। इंटिमिडेशन थ्रेट वुड बी हायर अथॉरिटी इंटिमिडेटिंग दी लेसर पावर्ड अथॉरिटी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, ऐसा मुझे लगता है। Which of the following is not a related party as defined by IS 24 related party disclosure? अभी ये अपने को आता नहीं है, बट एक बार लॉजिक से करके देखते हैं। Which of the following is not a related party as defined by IS 24 related party disclosures? An entity that is member of the same group as the reporting entity, a joint operation of the reporting entity, a member of the key management personnel, a member of the key management personnel of a parent of the reporting entity, a person who has joint control over the reporting entity. मेरे को पता नहीं क्यों बी लग रहा है। बी लाइक बी लग रहा है। बी बी फॉर बॉल। ओके, joint control over the entity। मतलब बी और डी में ज्यादा कंफ्यूजन है, बिकॉज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर मतलब, अगर मेरे को तो समझ आ रहा है कि भाई एक पार्टी है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, उसका डिस्क्लोजर हो रहा है, तो एन एंटिटी दैट इज अ मेंबर ऑफ सेम ग्रुप एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी, तो सेम ग्रुप का हो गया। Joint operation of the reporting entity, a member of key management person of the parent of the reporting entity, a person who has joint control over the reporting entity. So I guess the first one is different compared to the rest A, B, C, D, हम्म। because सब में reporting entity है except for the first। अच्छा उसमें भी है। ओह। ये सी लग रहा है, because a member of the key management personnel of a parent of the reporting entity, how is that even related to other entities? मतलब मुझे ऐसा लगता है। We have not studied this IAS so far, अपन बस नाम से गेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आई थिंक ये होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे ऑड, मतलब ये ऑड मैन आउट ऐसा मुझे लगता है। Which of the following meets the definition of the related party according to IS 24 related party disclosure? ये भी नहीं पता होगा। Two entities that are joint ventures of the same third party, two ventures who share joint control over the joint venture, joint control over the joint venture. Okay, a supplier with whom an entity transacts a significant volume of business. ये तो नहीं है, सी तो नहीं है। Entities with a common member of key management। की मैनेजमेंट आ गया वो। क्या? की मैनेजमेंट आ गया। The one that you just happen to, you know, choose as odd one out has appeared as a part of this. It can be, I think, either of the A or B. फोर्थ में जो मैंने नहीं सिलेक्ट किया था वो डी में आ रहा है, ऐसा तो बोल रही है ना? हाँ। तो देख, अगर देखा देख देख मैंने फोर्थ में बोला था कि ये नहीं होगा, और अगर मैं फिफ्थ में बोल देता हूँ कि ये होगा, तो कुछ एक तो सही हाँ, आएगा। कुछ तो एक तो सही आएगा, राइट, बट डेफिनेशन अगर देखा जाए तो रिलेटेड पार्टीज का ए और बी में से ज्यादा जा रहा है।
हाँ, अगर देखा जाए मन तो। मन ए और बी में कर रहा है। Two entities that are joint ventures of the same third party. Two ventures who share joint control over a joint venture. मेरे को तो ए थोड़ा ज्यादा लग रहा है। मुझे भी ए वाले पे ज्यादा फील आ रहा है। कंफर्म करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं बस चाहता हूँ कि किसी हाँ की तो ठीक है ना। जीरो ना आए। नहीं, जीरो ओ तो नहीं आएगा। 16, ओ अपना लास्ट वाला सही था। चलो, लास्ट वाला राइट था। इजी। अपना फर्स्ट वाला रॉन्ग है। फ्रॉड बोलते हैं उस चीज को, नॉट इनसाइडर डीलिंग। फ्रॉड इज ब्रॉडली डिफाइंड एज अ डेलिबरेट एक्ट टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। मैनिपुलेशन एंड इनसाइडर डीलिंग हैव मोर स्पेसिफिक मीनिंग्स। ओके, इनसाइडर डीलिंग इज मोर रिलेटेड टू ओह, शेयर्स वगैरह। यार मेरे को समझना चाहिए था। ठीक है, कोई ना। it does सेकंड match वाला the definition of न्यू that as डिपेंडेंस यहाँ पर भी आता ही था। 5 कैटेगरीज है देख। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन। मैनेजमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट कैटेगरी। बी, जॉइंट ऑपरेशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। तू तू अभी I did say that. right. But there's no logic to my answer, definitely. A definition includes joint venture but not joint operation. So अपन ने joint venture किया था, like in the definition next वाले में। तो joint operation नहीं होता, joint venture होता है, ये याद रखना है। हम्म Related parties। 2 entities that are joint venture of the same third party। ये मुझे कहने का ही सही लग रहा था, बिकॉज द नेम ऑल्सो सेज द रिलेटेड पार्टी। मतलब दोनों डील जो कर रहे हैं उनका एक ही कॉमन थर्ड पार्टी है। मुझे ये वाला जेन्युइनली सही लगा था। ये बात तो तुक्का ही था यार, बट ठीक है। मुझे फर्स्ट वाला सैड लग रहा है, फ्रॉड वाला फ्रॉड, सबसे ज्यादा। हाँ। फ्रॉड हो गया हमारे साथ। ठीक है। But one thing you understood now that these quizzes are not order wise. They are नहीं, इन्होंने यहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं। हियर इट वो सेज अलग है। एथिक्स एंड अकाउंटेंट। नहीं नहीं, ये देखना, एथिक्स एंड अकाउंटेंट। हाँ वो chapters है। तो quizzes are not chapter based. Quizzes are दिस like इज अ only चैप्टर बेस्ड, चैप्टर्स 22 और क्विज़ेस भी देख 22। अबे चैप्टर 22 क्विज। अरे ये देखना, that's just a चैप्टर 10 coincidence. क्विज, चैप्टर 11 क्विज, चैप्टर 12 क्विज। अरे हमने पीके नहीं में but भी it's किया not। है, एफए में भी हमने किया है ये। तो वो मैंने भी किया था, ऑडिट में भी तो मैंने किया था। But was it chapter wise? यस। तो related party was in chapter 1. नहीं, अरे इनके चैप्टर अलग है और हमारे चैप्टर्स अलग है। ये देख, चैप्टर नंबर 7 IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अच्छा। चैप्टर 8 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इनके चैप्टर्स अलग है, जैसे जैसे तो इन्होंने भी एलोकेट तो किए हुए चैप्टर 1 में जा एक बार। चैप्टर 1 में जा। तो एथिक्स एंड अकाउंटेंट में रिलेटेड पार्टीज है। हैं। ये देख, रिलेटेड पार्टी इशू। तो हाउ डिड वी मिस दिस? ठीक है ना, एक में ऐसा हुआ। अभी ये IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS फॉर SMEs एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी ये तो अपन ने किया हुआ है, SMEs वगैरह। तो ये तो हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ IFRS स्टैंडर्ड्स, ये भी अपन ने उस दिन चैप्टर पढ़ा था। Which of the following statements is correct regarding amendments to existing IFRS standards, accounting standards, and the development of new IFRS accounting standards? The question paper must be issued when IFRS accounting standard is amended, or an exposure draft must be issued when a new IFRS standard is being developed. New IFRS standard is issued by the IFRS Accounting Foundation. The annual improvement project is used to make minor amendments to the number of IFRS accounting standards. देख ए तो नहीं है, मेरे को लगता है ए तो नहीं है। एंड एक्सपोजर ड्राफ्ट में भी इशूड व्हेन अ न्यू आईएफआरएस स्टैंडर्ड इज बीइंग डेवलप्ड। न्यू आई सी भी मुझे नहीं लगता है। इट्स बी या डी में से व्हाट आई फील लाइक इज द आंसर।
शायद बी हो सकता है। वो ए ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, तो ए कर दे अपन, मतलब चेक कर दिए ना। हम्म। एनुअल इम्प्रूवमेंट जैसे होने तो चाहिए, बट छोड़। Which of the following is not a possible outcome of post-implementation review of a new standard? नो एक्शन, नॉट No. पॉसिबल आउटपुट। Withdrawal of the standard. पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ऑफ न्यू स्टैंडर्ड, पर विड्रॉ तो किया जा सकता है ना। Post-implementation review of a new standard. देख, अगर पोस्ट रिव्यू किया जा रहा है इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो अमेंडमेंट्स द स्टैंडर्ड आ सकते हैं, चेंजेस लेके आ सकते हैं, बिकॉज रिव्यू किया है, तो इफ देयर इज एनी चेंजेस। इशू ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, नो एक्शन भी लिया जा सकता है, मतलब बिकॉज अगर कुछ गड़बड़ नहीं है, रिव्यू किया, कुछ गड़बड़ नहीं है, तो कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो वो भी हो सकता है। विड्रॉल ऑफ द स्टैंडर्ड भी हो सकता है, अगर लगे कि भाई चीज सही नहीं है इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो आई गेस बी कैन बी द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। इश्यू ऑफ एजुकेशन मटीरियल। After implementation, post-implementation review of a new standard, amendment तो स्टैंडर्ड हो सकता है, इशू ऑफ न्यू मटेरियल, न्यू एजुकेशन मटेरियल करना ही चाहिए। विड्रॉल ऑफ द स्टैंडर्ड क्यों होगा? जब जब तक एक नया स्टैंडर्ड नहीं आएगा या नया अमेंडमेंट नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है विड्रॉ करेंगे तब तक। विड्रॉ तब करेंगे जब हमारे पास कोई ऑप्शन होगा, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन एन एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू यूज IFRS फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज? Which is general purpose financial statement, more 50 employees. So the following would mean entity is not eligible to use IFRS for small medium entity. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहता है तो अपन यूज करते हैं आईएफआरएस, और टर्नओवर अबाउट 1 लाख रहता है तो अपन यूज करते हैं आईएफआरएस। पब्लिश जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो यूज कर सकते हैं आईएफआरएस। एंटिटी हैज मोर देन 50 एम्प्लॉयज, तो आई गेस इज नॉट नेसेसरी टू यूज एन आईएफआरएस। May not be पब्लिश जनरल eligible to पर्पस। use IFRS for small and medium sized entities. मुझे तो ए लग रहा है, तेरा बता। मतलब तू बोल रहा है, मतलब व्हाट डज दिस क्वेश्चन मीन इज कि एंटिटी कब एलिजिबल नहीं है आईएफआरएस यूज करने के लिए फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, जब वो एंटिटी एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पे है, तो उसे आईएफआरएस यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। IFRS फॉर SMEs नहीं यूज करना चाहिए। अगर वो पब्लिकली अकाउंटेबल है, मतलब वो एक लार्ज फर्म है, तो वो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज का IFRS क्यों यूज करेगी? ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो। ठीक है, तुझे क्या लगता है? मुझे सी लगता है। ओके। Which of the following topics is not omitted from the IFRS for small and medium-sized entities? Hmm. अर्निंग पर शेयर और है, इंटरनल फाइनेंशियल भी है, ऑपरेटिंग सेगमेंट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आई थिंक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मुझे तो ये लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है। To which of the following may the undue cost or effort exemption in IFRS for SMEs be applied? एक्टिव कॉस्ट और
effort exemption, undue cost. Which of the following will be the undue cost of effort exemption? Impairment test of goodwill when indicators of impairment exist. Testing of goodwill. Cost and the cost of qualifying asset. Okay. Acquisition of development cost and intangible asset नहीं. Impairment testing of goodwill नहीं. जो borrowing cost as a qualifying asset. Need. ठीक है, मेरे को शायद डी लग रहा है। B. डी डी डी। D. रुक जा, मैं A और C में कंफ्यूज हो रहे. अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट एग्जेम्पशन. मेरा कॉस्ट ज्यादा है मेरे बेनिफिट से. अच्छा, इसका ये मतलब हुआ अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट exemption। हाँ, मतलब एसएमईज इतना कॉस्ट और एफर्ट्स बेयर करेगी, बट क्या वो सच में रिक्वायर्ड है? बी, चलो मैं बी करता हूँ. अचानक से मेरे को बी का मन कर रहा है क्योंकि ए और सी ना मैंने साथ में देखा है. सिंप्लीफिकेशन में बी को मैं नहीं देखा है. तुझे क्या लगता है? नहीं पता। गुडविल का इम्पेयरमेंट मतलब एसएमईज में तो बहुत मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट का भी बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट डायरेक्टली कर देते हैं ना, एज फार एज आई रिमेम्बर। वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, कैपिटलाइज नहीं करते डेवलपमेंट कॉस्ट को। कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट एज एन इंटेंजिबल एसेट। आई गेस ए फॉर मी, ए फॉर मी। ओके, चेक करते हैं. 60. डी है एनुअल इम्प्रूवमेंट्स. Project is used to make minor amendments to the number of IFRS standards. So existing IFRS standard and developing standards. Which of the following development statement is correct regarding amendments to existing IFRS standards and development standards? तो annual improvements होने चाहिए. When an IFRS standard is being developed or amended, the issue of a decision paper is a non-mandatory stage, and issue of an exposure draft is a mandatory stage. International Accounting Standards Board issues new IFRS accounting standards. With accounting foundation. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड करता है, आईएसबी, नॉट अकाउंटिंग फाउंडेशन. ठीक है. ओके. यहाँ पे विड्रॉ स्टैंडर्ड. अब PIR assesses how well a new standard is performing in practice after a few years. Since it does not reconsider every aspect in the new standard, it would result in its withdrawal. Reconsider every aspect of the would not, it would not result in its withdrawal. जाओ हम्म आगे. हम्म
If an entity has public accountability, it is not eligible to use IFRS for SME standards क्योंकि वो एक large company basically. तो लार्ज कंपनीज क्या यूज करती है? IFRS standards. यही तो बोला था ना। IFRS फॉर एसएमई स्टैंडर्ड्स एक अलग स्टैंडर्ड है। IFRS स्टैंडर्ड ओ एक हाँ 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 स्टैंडर्ड है। हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। Which of the following topics is not omitted from the, हाँ ये तो अपने वो आ गया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सही है। यहाँ पे लास्ट में ना रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल तू बोल रही थी, तू यही बोल रही थी। बट रीजन क्या है? An intangible asset acquired in a business combination is required to be recognized unless its fair value cannot be measured reliably without undue cost or effort at acquisition date. There are no exemptions on the simpler option requirements of expensing all development cost and borrowing cost. Although goodwill is amortized rather than tested annually for impairment, it must still be tested for impairment when there are indicators of impairment. Though it is amortized rather than tested for an impairment, it will still be tested for impairment when there are indicators of impairment. Goodwill तो टेस्ट फिर भी होगा। Intangible asset acquired in a business combination is required to be recognized unless its fair value cannot be measured reliably. ठीक As है, the recognition of intangible assets acquired in business combination, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा समझा नहीं रही है मेरे को। मुझे भी नहीं। मतलब जो गुडविल वगैरह रहते हैं वो अपने को रिकॉग्नाइज करने हैं। An intangible asset acquired in business combination is required to be recognized unless its fair value cannot be measured reliably without undue cost or effort at the acquisition date. अच्छा, हमें इस चीज को डिटरमाइन करना है, हमें गुडविल वगैरह को रिकॉग्नाइज करना है, बराबर है। अभी हमें उसे फेयर वैल्यू पे कर सकते थे, लेकिन हमें उसके लिए ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगा और ज्यादा एफर्ट ये लगाना पड़ेगा उसका फेयर वैल्यू निकालने के लिए, ऐसा। तो वो हम नहीं करना चाहते। मतलब एसएमईज एक्चुअली क्या है कि कॉस्ट कम रखो और एफर्ट कम रखो, वो उनका मतलब वो उनका प्रिंसिपल रहता है कि इसके लिए डी आंसर है तो भाई। मतलब अगर डील में कॉस्ट कम लगता है, बेनिफिट ज्यादा होता है। हाँ, बेनिफिट ज्यादा होता है ऐसा नहीं एसएमईज में, लेकिन कॉस्ट कम ये लगाते हैं वो लोग, ऐसा। समझी मैं, मतलब कॉस्ट विल नॉट आउटवे द बेनिफिट वैसा। हम्म। An item meets the definition of an asset in accordance with the conceptual framework for financial reporting. What additional criterion must be met for the asset to be recognized in the financial statements according to the conceptual framework? Any future economic benefit associated with the asset must be probable. An asset has a cost or value that can be measured reliably. Rights associated with the item are controlled by the entity. Recognizing it provides information that is useful. What additional criteria must be met for the asset to be recognized in the financial statement according to conceptual framework? ए तो नहीं है। ए नहीं है ना, तो बोल रही है हम्म। भाई, क्योंकि दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ओनली। मतलब ये लोग कहना चाह रहे हैं एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट मस्ट बी प्रोबेबल। भाई अभी मतलब यू नेवर नो ना अभी भाई, प्रोबेबल मतलब
we expect that आए, but अभी आए नहीं आए, you never know that. नहीं तो मस्ट बी प्रोबेबल। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि ये जो ए है ना, दिस कम्स अंडर द ये डेफिनेशन ऑफ द एसेट इटसेल्फ, ऐसा मुझे लग रहा था। What additional criterion must be met for the asset to be recognized in the financial हम्म। statement according to the right एडिशनल। associated with the item are controlled by the entity? मुझे तो वही लग रहा है, सी बहुत स्ट्रांगली। Hmm. ठीक है। Hmm. Recognition is the process of capturing for inclusion in the financial statements items which meet the definition of an element in the IFRS conceptual framework for financial reporting. Which of the following items should be recognized as the result? Sorry, यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ? Which of the following items should be recognized as an asset in the financial position of a company? A skilled and efficient workforce which has been very expensive to train. Some of these staff are still in employment of the company. A highly lucrative contract signed during the year which is due to commence shortly after the year end. A government grant relating to the purchase of an item of plant several years ago which has remaining life of 4 years. A receivable from a customer which has been sold factored to a finance company. Finance company has full resource to the company for any losses. तो ए और डी तो नहीं है, बचा बी और सी, विच इज ड्यू टू कमेंस शॉर्टली आफ्टर द ईयर। अच्छा मुझे तो ल्यूक्रेटिव क्या था, मैं वो मीनिंग नहीं पता ल्यूक्रेटिव का। नहीं, ठीक है, अपन सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। ल्यूक्रेटिव मीनिंग allowing somebody to earn a lot of money। ओके, हाईली पैसों वाला कॉन्ट्रैक्टर लेकिन वो कमेंट शॉर्टली होने वाला, अब तक हुआ नहीं है। सो आई थिंक सी होना चाहिए। तुझे क्या लगता है? A receivable from a customer which has been sold factor to a finance company. The finance company has full resource to the company for any losses. So we can recognize this as an asset, right, in the company. Well, why do you not think that this will not be included as an asset? मतलब वो अब तक कमेंट्स हुआ नहीं है ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए। वैसे गवर्नमेंट ग्रांट कैसे, मैंने वो सुना भी है ना गवर्नमेंट ग्रांट। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट भी तो तेरा एसेट नहीं होगा ना until unless because of 4 years के पीरियड के लिए है तो you'll not recognize it in the full amount. पार्ट्स में तो थोड़ा थोड़ा recognize करके करेगा. करेंगे। I think I'll go for D. डी। D. ओके। Trustine company operates in an emerging market with a fast growing economy where prices increase frequently. Which of the following statements are true when using historical cost accounting compared to current value accounting in this type of market? Capital employed, which is calculated using historical cost, is understated compared to the current value capital employed. Historical cost profits are overstated in comparison to the current value profits. Capital employed, which is calculated using the historical cost, is overstated to the current value capital employed. Historical profits are understated in comparison to the current value profits. Okay. मैं सच बताऊं तो मेरे को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। पर अपन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना. हम्म। लेट्स मतलब ब्रेक डाउन करते हैं. अपन को बोला है कि ऑपरेट्स इन इमर्जिंग मार्केट, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, द प्राइस इंक्रीजेस फ्रीक्वेंटली. मतलब एक अपन ओल्ड आउटडेटेड डेटा को करंट डेटा के साथ कंपेयर कर रहे हैं. तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है पहले, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. करेक्ट. दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट. करंट एसेट्स Plus non-current asset minus current liability. That is capital employed.
ओके। ओके हाँ ठीक है, ठीक। आरओसी फाइंड आउट करते हैं ना अपन हाँ राइट उसमें। राइट राइट, मेरे को याद आया बराबर। तेरी आवाज चली गई, क्या नहीं बोला नहीं, तू? मुझे याद आया, मैं आई सेड यस। हाँ, capital employed which is calculated using historical cost is understated compared to the current value capital employed। मतलब अगर historical rate रहेगा और अपने रिसीवेबल्स पेबल्स और जो ये रहेंगे, तो वो हिस्टोरिक रेट सपोज अगर लेते हैं कि सब दो दो पर है या 555 पर है सबका कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और अब करंट वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड जो रहेगा, वो लोग कह रहे हैं कि हिस्टोरिक कॉस्ट इज अंडरस्टेटेड कंपेयर टू द करंट वैल्यू। हम्म। सी व्हाट आई एम सेइंग इज, हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर हम यूज करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स हाँ, ओवरस्टेट तो होंगे एज कम्पेयर टू करंट वैल्यू प्रॉफिट। तो मुझे सेकेंड वाला तो सही लग रहा है। मुझे वो फॉल्स लग रहा है, मैं बताती हूँ क्यों। ओ। बिकॉज जब अपन लैंड लेते हैं, लैंड हाँ। का जब हिस्टोरिकल कॉस्ट रहता है, वो 100 साल मतलब 10 साल पहले उसका वैल्यू माइट बी 1 लाख, एंड करंट वैल्यू उसका निकालेंगे तो उसका वैल्यू विल बी 1 CR। जिस तो व्हाट आई फील इज कि historic cost will be compared to the current value profits. Current value profits will be more compared to historical cost. अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड में कंफ्यूज हो रही हूँ मैं तो। मुझे एक्चुअली सेकेंड वाला लग रहा था रे, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रॉफिट्स। देख, आई टेल यू, मुझे ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रॉफिट्स का ये मतलब है कि सपोज तूने आज सेल किया हाउस को, यूजिंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द हाउस एज योर डिडक्शन, और एज द मतलब तू उसको माइनस करेगी ना, सेल माइनस परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब मैं इसको टैक्स के आईटीआर की तरह मैं समझने की ट्राई कर रहा हूँ, आई डोंट नो वो सही है कि नहीं है। लेकिन अगर तू उसी कॉस्ट पे इंडेक्सेशन लगाएगी और उसके करंट वैल्यू भी लेके आएगी तो तेरा प्रॉफिट कम होगा, ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो। इसलिए मेरे को सेकंड वाला ट्रू लग रहा था, बट यू स्टिक टू व्हाट यू थिंक। मतलब फास्ट गोइंग इकोनॉमी है, मतलब अगर कल भाव 10 पे था तो आज भाव 20 पे आ गया है, मतलब कल का जो प्रॉफिट है वो वैसे हाई दिखेगा, यू आर ट्राइंग टू से, देन हम्म। कंपेयर टू जो आज दिखेगा, प्रोबेबली द कॉस्ट विल बी हायर इन्फ्लेशन के कारण। दिस इज व्हाट यू आर रिलेटिंग टू। एग्जैक्टली। मतलब that can also be one, you saw it from that sales वाला point of view, I saw it from the asset point of view ठीक कि ठीक ठीक। assets का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो नहीं ठीक है, तो तेरे को फोर्थ से लग रहा है, मेरे को सेकंड से ही लग रहा है, बोथ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अब मेरे को ए और सी में चुनना है, तेरे को बी और डी में चुनना है। कैपिटल कौन सा यार 3 में से? हिस्टोरिकल कॉस्ट ओवर स्टेटेड टू। ए लग रहा है। और मुझे डी। लेट्स गो ऑल ऑपोजिट। चलो ठीक है। Which of the following is not necessarily a factor that must be considered when determining the highest and best use of of a non-financial asset? The use that is financially feasible, ये तो completely नहीं होगा क्योंकि नॉन फाइनेंशियल एसेट के बारे में बताना है, बट देखते फिर भी। The current use of the asset, the use that is physically possible, the use that is legally permissible. फाइनेंशियल एसेट, एग्जांपल दे नॉन फाइनेंशियल एसेट का। नहीं मेरे को नहीं आता नॉन फाइनेंशियल एसेट का। आई थिंक नॉन फाइनेंशियल एसेट मतलब ये लोग शायद बोलना चाहते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नॉन फाइनेंशियल एसेट जैसे हाँ वही है, बिल्डिंग्स मोटरसाइकिल इक्विपमेंट, ये देख वही है। मतलब बेसिकली नॉन मॉनेटरी आइटम्स। अच्छा, जो अपन ने आज पढ़ा था वो। मतलब काफी बचकांड एक आंसर आ रहा है कि देख नॉन फाइनेंशियल एसेट है तो अपन उसका फाइनेंशियल यूज क्यों देखेंगे।
मेरे को ऐसा थॉट आ रहा है। Which of the following is not necessarily a factor that must be considered? इसमें mathematics consider नहीं करना है, तो उसमें determine कर रहा है land और building, तो the use that is financially feasible, the current use of the asset, the use that is physically possible, the use that is legally permissible. Current use of asset, the use that is physically possible. तूने तो भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया, नॉन फाइनेंशियल का उल्टा मैं उसी फाइनेंशियल के कर साथ दिया। जाने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। भले गलत तो गलत, वैसे भी देख मेरी को ऐसी स्ट्रीक नहीं है 100% की जो ब्रेक हो जाएगी। नहीं समझा मेरे को। मोटिवेशन किल्ड देयर। ब्रेन इज ऑफिशियली फक्ड ब्रो। नॉट नेसेसरी फैक्टर दैट मस्ट बी कंसिडर्ड, इस फैक्टर को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे जब उसका बेस्ट यूज उठा रहे रहेंगे नॉन फाइनेंशियल एसेट का। हम्म। द यूज दैट इज फाइनेंशियली feasible, the current use of the asset, best highest and the best use of the non-financial is the use that is physically possible, the use that is legally permissible. Must be considered recommend the highest, not necessary. Legally permissible, the current use of the asset. मैं डी के साथ जाती हूँ भाई। डी के साथ। या ठीक है। IFRS 13 fair value measurement sets out a fair value hierarchy that categorizes inputs into three levels. Okay. Which of the following inputs would have the highest authority? Unobservable inputs, directly observable inputs that other than quoted prices in active markets at the measurable date, corroborated inputs. सी है क्या? सी। मुझे मुझे भी सी लग रहा है। बिकॉज कोटेड प्राइस इन द एक्टिव मार्केट, हाँ मुझे फर्स्ट वही लेवल वन। सेम। चेक करते 60 के इधर आसपास हाँ। ये आया यार। राइट्स तो गलत था अपना यार। आइटम मीट्स द डेफिनेशन ऑफ द एसेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो एडिशनल क्राइटेरिया यूज करना चाहिए वो है रिकॉग्नाइजिंग इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल। अच्छा कंट्रोल ये देख। कंट्रोल जो है इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड इन मीटिंग द ये डेफिनेशन ऑफ द एसेट। तो इन लोगों को तो एसिड का डेफिनेशन देना था ना, फिर हम बताते ना कि क्या नहीं आना चाहिए। तो दे वांटेड कि एसिड के डेफिनेशन को छोड़ के प्लस और क्या, आई नो। ऐसा। मैं तो सेम मैं तो यही लॉजिक लगा के सी मार्क किया था कि एसिड के डेफिनेशन में अच्छा, कंट्रोल का वर्ड नहीं, मतलब वर्ड नहीं यूज किया गया है, इसलिए मैं। तो आई वाज आल्सो विथ यू क्या इन दिस। ठीक है, नेवर माइंड, आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या बोला था। गवर्नमेंट ग्रांट इज रॉन्ग और द रिसीवेबल फ्रॉम ये शायद तेरा सही है। रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर विच हैज बीन सोल्ड फैक्टर टू अ फाइनेंस कंपनी। द फाइनेंस कंपनी हैज फुल रिकोर्स टू द कंपनी फॉर एनी। अच्छा फुल रिकोर्स मतलब वापस आ सकता है ऐसा क्या? ओके यस, ओके। मतलब ऐसा था कि भाई अपन जो फैक्टराइज करते हैं, तो फाइनेंस कंपनी अपन को पूरा अमाउंट दे देगी, जितना भी हम्म। अपन एक 80% डील करते हैं ना, 80% रेट पर कि दे पे अस। एंड देन फिर अगर 80 से ज्यादा वो उनसे अपने डेटर से ले पाते हैं, तो वो हाँ। उनका प्रॉफिट हो जाता है। एंड वी प्ले अ प्रीमियम बिकॉज दे आर गिविंग द श्योरिटी ऑफ द 80%। इसके लिए आई वाज लाइक कि भाई ये तो श्योर श्योर मतलब उसमें जाना चाहिए हम्म। as an asset because this we can recognize because we have been provided with a surety। इसके लिए मैंने डी बोला। ओके। ये था कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट इज अंडरस्टेटेड। Historic highest asset values will be lower than the current values.
and therefore capital valuation will be understated. ये मुझे समझा था. In items of rising prices, the cost of sales will be based on historical prices, and depreciation will also be based on the lower historical costs. Therefore, profit is overstated. Right. Capital employed, which is capital in historical terms, is understated compared to the current value. Capital employed understated रहेगा because historical cost रहेगा इसके लिए current value, and historical cost profits are overstated in comparison to current profit value because costs are stable based on historical value, addition also based on new historical value. Okay. Yeah. So the following is not necessarily a factor that must be considered when determining the highest and best use of the financial asset. And the current use of the asset. Although in the absence of any further information, the current use is presumed to be the highest and best use. The concept is based on the use of market participants, which may differ. Highest and best use takes into account the use of the asset that is physically possible and legally permissible and financially feasible. भाई साहब सिली मिस्टेक था ये Highest and best use मतलब take into consideration of. नॉन फाइनेंशियल के एसेट की डेफिनेशन आई थिंक दैट कम्स फाइनेंशियली feasible, physically feasible and legally permissible तो Okay. वो उसमें आ The जाता highest and best use of an asset should be physically है possible, आई थिंक वो financially उसमें feasible, पॉइंटर्स भी था permissible. काफी अच्छा क्वेश्चन. फिर ये तो अपने को आता था. ठीक है.